الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فتنوں کے دور میں راہ نجات بظاہر ایک عجیب سا موضوع لگتا ہے. فتنوں کا لفظ ہم نے بار بار سنا ہے، لیکن فتنوں کے دور کی تشریح کی جائے، اس کی تفصیلات بیان ہوں، وہ تو لگتا یہ ہے کہ خود ہی نظر آنے چاہیے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فتنوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے، فتنوں کی نشاندہی کیوں کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے یہ دو انگلیاں. یہ فرما کر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی لوگوں کو دکھائی اور فرمایا کہ کیا ان کے درمیان میں کچھ ہے؟ اور پھر فرمایا جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی ہدایت کا منبع اور مرکز نہیں. قیامت تک کے لیے نور ہوں، روشنی ہے، وہ سب میں ہوں گویا. قیامت تک کے لیے، آج کے دور کے لیے، آج کے حالات کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے جو تعلق تھا، وہ جو روایات میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کیفیات سوچ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جاتے تھے. تو آپ کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ امت جس شاہراہ پر سفر کرے، زندگی کا جو راستہ طے کرے، اس راستے کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، اس شاہراہ کے بارے میں بھی کچھ ہدایات دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ہر کوئی سود کھا رہا ہوگا. اور پھر آپ نے مثال بھی دی، یعنی آدمی سوچتا ہے ہر کوئی نہ کھانا چاہے تو آپ نے فرمایا دھوئیں کی شکل، گویا گرد و غبار کی شکل سود اختیار کر لے گا. نہ کھانے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کھائے گا، جیسے ہم دھواں نہ چاہتے ہوئے کھاتے ہیں راستے میں. آج یہ کیفیت نہیں ہو گئی ہے. یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کن فیکٹریوں سے نکل کر آئے ہیں؟ یہ جو میں آٹا استعمال کرتا ہوں کن چکیوں سے پس کر آیا ہے؟ کس بنیاد پر فیکٹریاں قائم ہوئی ہیں؟ ہر جگہ سود کے ذرات گویا موجود ہیں. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا. ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ، مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے ہفتہ، اور ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے گھنٹہ، اور گھنٹہ ایسے گزر جائے گا بس جیسے ابھی تو شروع ہوا تھا اور گیا. حالانکہ آج کل سہولتیں بڑھ گئی ہیں، انسان نے وقت کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی ہے. یعنی ایک زمانہ تھا گھر میں خواتین کو روٹی پکانا ہوتی تھی، کھانا، چولہا جلانا ہے اور کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. اب کیا ہے، ایک کان میں روڑا، چولہا روشن اور آگ جل بھڑک اٹھی. لیکن اس کے باوجود لگتا ہے وقت ہی نہیں ہے. سب سے بڑا بحران وقت کا ہے.
इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना आएगा, ऐसी सवारी पर सफर होगा जिसको तुम हवा में उड़ते हुए देखोगे और जमीन के फासले सिमट और सुकड़ जाएंगे। और फिर आपने फरमाया उसकी पीठ पे बैठ के नहीं, यानी उस जमाने में हाथी की पीठ पर और खच्चर की पीठ पर और घोड़े की पीठ पे सफर होता था। आप उसमें फरमाया पीठ पे नहीं, पेट में बैठ के सफर हुआ करेगा और उसके दोनों कान 30-40 हाथ लंबे होंगे। यानी बच्चे के सामने ही बात की जाए तो कहेगा अच्छा ये जहाज, हवाई जहाज का तस्करा 1,500 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तस्करा किया। ऐसी आवाज में बात होगी जो मशरिक और मगरिब में बैक वक्त सुनाई देगी। मशरिक और मगरिब में बैक वक्त सुनाई देगी नहीं, दे रही है। अभी 7 बजे तो वॉइस ऑफ अमेरिका की नशरियात शुरू हुई। कहां से? वाशिंगटन से, हजारों मील दूर। सुना हमने यहां कराची में, मैंगोरा में, ठट्टा में, हजारों मील दूर। और बराह रास्त, ऐसा नहीं है कोई उसमें सेकंडों में बात हम तक पहुंची। ऐसी आवाज में बात होगी, मशरिक और मगरिब में बैक वक्त सुनाई देगी। फिर इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा बूढ़े अपने आप को जवान दिखाया करेंगे। ये तो कैसे कैसे दिखाने की तरकीबें आ गई हैं, चाहे लीडराने कलां कराम हो, चाहे अहमतुन्नास हो, चाहते हैं बुढ़ापन नजर ही ना आए। आदमी 70 साल का भी हो, जवानी नजर आए और कोई सफेदी नाम की चीज नजर ना आए। और इसमें पहले तो खवातीन के हवाले से ही मशहूर था, अब ये तखसीस नहीं है, खवातीन हो या मर्द, लोग अपने आप को गोया जवानी जाहिर कर रहे होते हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेकसूर को कत्ल किया जाएगा। क्यों? ताकि इश्तहाल फैले। वाकया ये है, जब ये मैं हदीस पढ़ी तो मैं तो चौंक गया। ज़ाहिर पिछले 40-50 साल से पाकिस्तान में देख रहा हूं और दुनिया भर में बाज कत्ल सिर्फ इसलिए होते हैं जरा फसाद हो, जरा हंगामे शुरू आए, इश्ताल आ जाए, मज़ाहिर कत्ल इसलिए किया जाएगा ताकि लोगों में इश्ताल फैले। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा फाहिशा औरतों की ज़ियारत की जाएगी। फाहिशा औरतों की बड़े बड़े पोस्टर घरों के अंदर, बाहर, अखबारात में, ये जो सारी चीजें हैं बड़ी नेक परहेजगार खवातीन हैं, सबके क्या क्या स्कैंडल और क्या क्या चीजें। लेकिन एक वक्त आएगा फाहिशा औरतों की ज़ियारत कराई जाएगी। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द औरत की शक्ल इख्तियार करेगा और औरत मर्द की शक्ल इख्तियार करेगा। ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी करेंगे। यानी इस वक्त जिस रूए जमीन पर हम हैं उसमें मगरबी दुनिया में 70% ममालिक में कानूनी है मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले। लेकिन 100 साल पहले और इससे पहले लोग सोचते होंगे ऐसे अहमकाना काम, यानी शादी, अपना मुस्तकबिल पे कुल्हाड़ी ये मारेंगे और मुस्तकबिल को तारीक करेंगे और आबादी के दरवाजे। लेकिन 70% मगरबी ममालिक में यह कानून है कि मर्द मर्द से शादी कर ले, औरत औरत से शादी कर ले। तो इस पहलू से आज के दौर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तस्करा किया है, मेरी और क़यामत की मिसाल ऐसी है जैसे ये 2 उंगलियां। कि कोई ना समझे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरक्की याफ्ता दौर के बारे में आपको आइडिया ही नहीं था। आइडिया नहीं, और ये तो मैंने देख के चंद चावल दिखाए हैं, वरना तो हदीस में लगता यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल कर आपको जैसे नक्शा दिखा दिया गया है आज के दौर की, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर खींची है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए, महबूब उम्मत के लिए, जिनके लिए रो रो कर आप दुआएं किया करते थे, और क़यामत के लिए भी तस्करा आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पढ़कर उम्मती उम्मती फरमा रहे होंगे। उस उम्मत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक परहेज तजवीज़ किया है। ये फितने जो हैं, इसको परहेज जैसी चीज अगर हम लें, इसलिए कि डॉक्टर पर हमें बड़ा इत्मीनान होता है, वो कह देता है रोगनी चीजें ना खाएं,
तो चाहे 5000 गज के बंगले में क्यों न रहता हो, हर चीज मैसर हो, लेकिन बेचारा उबली हुई गजा खा रहा होता है। डॉक्टर कहता है नमक छोड़ दो, नमक छोड़ देता है। कहते हैं मीठा छोड़ दो, मीठा छोड़ देता है। बिल्कुल रूखी सूखी बिल्कुल ही बेमजा चीजें आदमी खा रहा होता है। क्यों खा रहे हैं? कहते हैं डॉक्टर ने कहा है और उसको मेरी सेहत का ख्याल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु आपने भी बहुत सारी चीजों से अपनी उम्मत को परहेज तजवीज किया है कि ये चीजें हैं जिनका एहतियात, जिन पर नजर रखो, जिन पे गोया तुम बचोगे तब गोया ठीक रास्ते पर चल सकोगे। लेकिन हमारा डॉक्टर पे तो बड़ा एतमाद है, उसकी कही चीज के बारे में हम किस तरह चीजें छोड़ देते हैं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु आप पर एतमाद और ताल्लुक, आपकी कितनी हिदायत हैं, कितनी चीजें हैं कि जिनसे आपने रोका। एक हदीस मैंने पढ़ी, शुरू में मेरी समझ में ही ना आता था कि आप सच में फरमाया एक वक्त आएगा हर घर से गाने बजाने की आवाज आएगी। लोग सोचते थे हर घर से गाना बजाना ये कैसे हो जाएगा, क्यों कर हो जाएगा। लेकिन आज आदमी के न चाहते हुए भी बजाने की आवाज तो हर घर से आ रही होती है। टीवी आप चलाएं, हत्ता कि खबरें क्यों ना सुने आदमी, उसमें म्यूजिक भी आए। हर इश्तहार में, हर यानी चीज में हर घर से गाने बजाने की आवाज आ रही होगी। तो ये चीज इस तरह से सामने आई है। तो इस पहलू से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बहुत रास्ता तजवीज किया है और रास्ते में रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिखाया है कि किन चीजों से बचना चाहिए। और ये एक हदीस है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज अदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के दरवाजे के हल्कों को पकड़ा और अपने सहाबा को मुखातिब किया और फरमाया, ए लोगों, सहाबा ने अर्ज किया लब्बैक या रसूलल्लाह, फिदा का अब्बी व उम्मी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी हो गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, हिचकियां बन गई। और फिर फरमाया, यहां तक कि रोने में शिद्दत आ गई। फिर फरमाया लोगों, और आपने अपने आप को संभाल कर फिर बात की कि लोगों मैं तुम्हें क़यामत की अलामात बताता हूं। इसके बाद आपने एक तवील खुतबा दिया जिसमें चंद बातें दर्ज दैल हैं, बाकी बातों का तस्करा आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया उस जमाने में मर्द इस तरह बने सवरेगा जैसे खवातीन तैयार होती हैं, और खवातीन मर्दों की और मर्द खवातीन की मशाबहत इख्तियार करेंगे। और फिर फरमाया उस वक्त बूढ़े लोग अपने आप को जवान जाहिर करेंगे और ऐसे कारी होंगे जिनकी इबादत ये होगी कि आपस में एक दूसरे की मलामत करें। और फरमाया कुछ लोग अल्लाह ताला से शिकवा करेंगे और ये उस वक्त होगा जब बाजार करीब करीब हो जाएंगे। साहबा ने उसका मतलब पूछा तो फरमाया कसाद बाजारी होगी और हर शख्स ये कहेगा मेरा कारोबार ठंडा है और मुनाफा कम हासिल हो रहा है। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई रिज़्क़ देने वाला नहीं। और फिर फरमाया बेकसूर आदमी को कत्ल किया जाएगा ताकि अवाम को मुश्तइल हो। आप सोचें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाने से पहले आप पे गिरिया तारी हो गई कि ये उम्मत उससे ताल्लुक, उससे मोहब्बत, किन फितनों और किस आजमाइश, फितनों का मतलब ही ये है कि आजमाइश, परेशानी, और ये फितने किसी कुफ्फार और गैर मुस्लिमों से जंग का नाम नहीं है, ये अंदर से। और ये गोया कैंसर की बीमारी है कि आदमी को लग जाए और धीरे धीरे सफर करना शुरू करे। बीमारी अपने जिस्म के अंदर होती है, अपने ही मैदे के अंदर है, अपनी शरीयानों के अंदर है, और धीरे धीरे वो सफर करती है, आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो किस तरह के अचानक नमूदार होती है। और लोग कहते हैं, डॉक्टर कहता है ये तो 4th स्टेज है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस दिन गुजारे जाएं, लेकिन पता क्यों नहीं चला। तो ये कैंसर की तरह से ये बीमारियां और ये फितने सरायत करते हैं और उतरते चले जाते हैं। फिर आप हमने ये भी फरमाया उसी मौके पर, और मोमिन उस जमाने में लोगों के दरमियान खौफ से चलेगा, तो इतना डिफेंसिव होगा, ऐसी परेशान कुन कैफियत होगी
चकाचौंध कर देने वाली एक दुनिया होगी और नजर को खीरा कर रही होगी, ऐसे में सीधा साधा बंदे मोमिन, वो बंदे मोमिन बिलुमूम सीधा ही साधा होता है, यानी कम से कम जाहिर में, वैसे बातिन में बहुत तेज तर्रार होता है। बातिन में एक सुराख से दूसरी मर्तबा नहीं डसा जाता, बातिन में वो दुनिया में उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। कि अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं ना, सीधे साधे लोग थे, दाढ़ियों वाले, पगड़ियों, और उन्होंने क्या कुछ कर दिया। तो इस पहलू से, लेकिन मजमूई तौर पर मोमिन उस जमाने में खौफ की कैफियत में गोया चलेगा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत तवील सी हदीस है, और उस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे फितनों का तस्करा किया है। आपने फरमाया कता रहमी यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक टूटने लगेंगे। आपने फरमाया झूठ को सच और सच को झूठा, सच्चे को झूठा माना जाने लगेगा। आज ये नहीं हो रहा है। और आप सच में फरमाया कि कहा जाएगा फला आदमी अमानतदार भी है, यानी अमानतदारी खत्म हो जाएगी और अमानतें जिसके सुपुर्द की जाएं वो अमानतों में खयानत गोया कर रहे होंगे, और कहीं पर कोई अमानतदारी भी हो तो लोग कहेंगे अच्छा फला आदमी अमानतदार भी है, फला आदमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। मोमिन सब कुछ हो सकता है, यानी बुज़दिल भी हो सकता है, कंजूस भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। लेकिन आज क्या छोटा, क्या बड़े बड़े लोग झूठ तो गोया उन पे खत्म है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लिबास रेशम का हो जाएगा, रेशम का इस्तेमाल गोया आम हो जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तलाक आम हो जाएगी। वैसे तो ग्लोबल विलेज है, गांव की शक्ल दुनिया में इख्तियार कर ली है, और जिनकी ये इस्तिलाहें हैं कि दुनिया को हमने ग्लोबल विलेज बना दिया है, वहां क्या सूरत हाल है? वहां सूरत हाल ये है कि अमेरिका में अगर 100 शादियां होती हैं 70 टूटती हैं। इतना कच्चा, इतना नाजुक बन गया है ये रिश्ता कि जरा सी देर में टूट जाएगा। तो तलाक, और अब हमारे यहाँ हम भी ज़ाहिर मगरबी चीज़ों के पैरोकारी में चल पड़े हैं, हमारे यहाँ भी अब तलाक़ें बढ़ रही हैं। और 150 साल पहले ये कैफियत नहीं थी जो आज कैफियत हो गई है। ये जदीद दौरे जदीद जिसका नाम, और दौरे जदीद किसका नाम है? दौरे जदीद नामी ये इजादात, इंकिशाफात और तरक्की का नाम नहीं है। जिन्होंने इस दौर को दौरे जदीद करार दिया और उन लोगों ने इसकी तारीफ भी की। और क्या तारीफ की? कहा दौरे जदीद उस दौर का नाम है जब इंसान अपने कदमों पे खड़ा हो गया, जब इंसान खुद मुख्तार हो गया, जब इंसान के पास इजादात हैं, इंकिशाफात हैं, थिंक टैंक्स हैं, रिसर्च सेल हैं। अब हम इसके मोहताज हैं कि ऊपर से कोई हमें हिदायत दे, अंधेरों से आई हुई कोई रोशनी हमें, हम खुद रोशनी में रोशन ख्याली। ये जो नारे लगाए जाते हैं वो हमें अब किसी रोशनी की जरूरत नहीं है ऊपर से आई हुई। दौरे जदीद हदीस या रिसालत के इनकार का दूसरा नाम है। तो इंसान इस दौरे जदीद में, और अब हम भी उस तरफ चल पड़े हैं, वो दौरे जदीद जो कुछ कर रहा है कि मर्द मर्द से शादी करे, औरत औरत से शादी करे, और बात तो इससे भी अब आगे बढ़ने जा रही है। वो अभी मैं हफ्ता भर पहले पढ़ रहा था कहीं, पता नहीं जर्मनी में या न्यूजीलैंड में, इस पर बात हो रही है कि जानवर से शादी की इजाजत इंसान को दी जाए। अरे तो कोई हद फिर नहीं है। वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा, ढूंढ रहा है फिरंग ऐशे जहां का दवाम, वाए तमन्नाए खाम, वाए तमन्नाए खाम। ये जो मगरिब है दुनिया का ऐश तलाश कर रहा है। ये ऐसी कच्ची तमन्ना ये पूरी नहीं हो सकती। ये तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। दुनिया की तो ये कैफियत है। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आपके सामने एक पहाड़ था, आपने फरमाया पहाड़ सोने का कर दिया जाए और इंसान से कहा जाए कि तुम्हारा हो गया, तो इंसान की क्या कैफियत है? इंसान कहेगा अल्लाह एक और नहीं हो सकता। वाकया ये है, आज हम इन सोने का पहाड़ रखने वालों को देख रहे हैं जो कहते हैं एक और नहीं हो सकता। तो उसके लिए पाकिस्तान, इसका क्या, ये सारी कैफियत तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया आज के दौर का तस्करा किया है
کہ یہ اسی طرح آپ سے اس نے فرمایا ناگہانی موت عام ہو جائے گی. اب یہ بات بھی ظاہر اچانک جس طرح سے پتہ چلتا، پر بعضوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے موت ہو گئی. پوچھو ہارٹ اٹیک ہوا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہوا. برین ہیمریج ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ناگہانی اموات گویا عام ہو جائیں گی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خیانت کار کو امین سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والوں کو امانت دار، اور لوگ اپنی امانتیں، اور سب سے بڑی امانت تو ملکی وسائل ہیں، وہ لوگ کے سپرد کر رہے ہوں گے، اور امین کو خائن سمجھا جائے گا، ان کو کے سپرد امانتیں نہیں کر رہے ہوں گے، اور اس کے نتائج پوری قوم کی قوم. یہ جو فتنے ہیں یہ ذاتی بھی ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، خاندان میں بھی، اور یہ پوری قوم بحیثیت مجموعی فتنوں کا. اور یہ باہر سے انجیکٹ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی حملہ نہیں ہوتا کہ توپوں کے ذریعے اور میزائلوں کے ذریعے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ تو ایک سر جنگ کی کیفیت جو فتنوں کی شکل میں ڈال دی جائے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی طلب ہوگی، اور پھر فرمایا گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کو آراستہ کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے. اور پھر ایک حدیث میں یہ ہے کہ اس زمانے کے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس زمانے کے قاریوں کو تم دیکھو تو تمہیں اپنے اوپر شرم کہ کیا شاندار، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے الفاظ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے. گویا صرف قرأت اور یہ سب تو بہت شاندار ہو رہی ہوگی، لیکن عمل کے میدان میں قرآن کی تعلیمات اس کے حوالے سے گویا دل ویران ہوں گے. تو اسی طرح آپ نے فرمایا شرعی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا، گانے والی عورتیں رکھی جائیں گی. اس طرح کی بے شمار احادیث ظاہر کتاب الفتن ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، اور مشکات شریف اس میں تفصیل کے ساتھ میرا خیال ہے کئی ابواب ہیں جس میں ابواب الفتن میں سارے فتنوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے. اور یہ لگے گا یہ تو آج کا دور بیان ہو رہا ہے، میری اور آپ کی کیفیت وہ بیان کی جا رہی ہے. تو اس پہلو سے پھر جو ابھی تذکرہ کیا دجالی فتنے کا، یہ دجالی فتنہ، اس کے بارے میں بھی جو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فتنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ان کا خلاصہ کہ فتنہ دجال اتنا سخت ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا. تمام انبیاء نے اس فتنے سے اپنی امتوں کو آگاہ کیا، یعنی ایسا خوفناک اور لپیٹ میں لے لینے والا فتنہ سارے انبیاء اس سے ہوشیار کرتے رہے، مگر اس کی جتنی تفصیلات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کسی اور نے نہیں بتائیں. آپ نے فرمایا اس وقت دین میں کمزوری آ جائے گی، خروج دجال کے وقت اچھے لوگ کم ہوں گے اور باہمی عداوتیں پھیل گئی ہوں گی، علم رخصت ہو رہا ہوگا. دجال کو دیکھنے کا موقع جسے ملے اس کو چاہیے اس سے پوری طرح بچے اور دور رہے، اس لیے کہ خدا کی قسم دجال کے پاس آدمی جائے گا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، مگر اس کی قربت اور ملنے کے نتیجے میں اس کا پیرو بن جائے گا، جس کی وجہ وہ شک اور شبہات ہیں جو دجال سے ملنے سے پیدا ہو جائیں گی. یہ جو آج تشکیک کا جو فتنہ ہے، اچھا بھلا بندہ مومن یہ سود کے بغیر معیشت کیسے چلے گی، عورت کے بغیر گزارا، یعنی ایسی سوالات کر رہے ہوں گے. اچھا بھلا بندہ مومن، ظاہر جو پورا یہ دور ہے، اور اس دور کے بارے میں بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی ہم نہیں کہتے کہ دجال کا کوئی خروج ہونے لگا ہے، لیکن اسٹیج جیسے تیار ہو رہا ہے، حالات اور فضا جیسے بن گئی ہے، بڑی موٹی موٹی علامات ہیں جو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اسی میں آپ دیکھیں کہ اس کی ایک کیفیت یہ ہے کہ مجھ جیسا آدمی بھی یہ آج کے دور میں اسلامی سزائیں چل سکتی ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور زانی کو سنسار بڑی سالمانہ. اچھا بھلا بندہ مومن، یعنی اس ساری کیفیت میں شکوک کا شکار، شبہات کا شکار اور
तशकीक का शिकार गोया हो रहा होता है। तो इस पहलू से आप इसमें फरमाया कि आदमी बहुत ही एहतियात और मोहतात हो जाए तो उसकी सोहबत भी आदमी को कम से कम शक में मुब्तला गोया कर देगी। इसी तरह फिर आप ने फरमाया कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा काफिर, जिसको मोमिन भी पढ़ सकेगा, खा लिखा पढ़ा हो या बेपढ़ा लिखा। लिखा पढ़ा होने की तो समझ में आ रही है, ये बेपढ़ा लिखा कैसे पढ़ लेगा? इसका मतलब ये है जो उलमा ने तशरीह की है, उस पूरी कैफियत में आप उसे निज़ाम कह लें, आप उसे तहजीब कह लें, उस पर छाप काफराना हो और इसमें कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि ये मुसलमानों की तहजीब है या मुसलमानों का तुर्र इम्तियाज है। उसमें गोया अलामात से बेपढ़ा आदमी भी समझ लेगा कि इसमें कुफ्र गोया मौजूद है। इसीलिए फरमाया कि बेपढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा हो, वो पढ़ लेगा कि ये गोया इस पे कुफ्र मौजूद है। फिर वो सवारी का तस्करा है जिसका मैंने तस्करा किया, फिर उस आवाज का तस्करा है जिसका भी मैंने तस्करा किया, और फिर फरमाया वो खुदाई का दावा करेगा। खुदाई का दावा करेगा। ये जो पिछले दिनों एक साहब ने कहा था, हम इनफाइनाइट जस्टिस दुनिया में कायम करेंगे। इनफाइनाइट जस्टिस क्या है? ये तो मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, आखिरत अल्लाह ताला के लिए ये मखसूस है कि वो असल में यौम यजमउकुम लियौमिल जमे ज़ालिका यौमुत तगाबुन, एक रोज हम जमा करेंगे, जमा होने वाले दिन। और ये कौन सा दिन होगा? जब पता चलेगा वो या इनफाइनाइट जस्टिस मिलेगा, कौन हारा कौन जीता, कौन नाकाम हुआ कौन कामयाब हुआ। तो एक अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि हम इनफाइनाइट जस्टिस यहां गोया देंगे। फिर फरमाया उसके साथ ग़िज़ा का बहुत बड़ा पहाड़ होगा, जो उसकी इताअत करेगा उस पर ग़िज़ा के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जो अदम इताअत करेगा उस पर ग़िज़ा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, सैंक्शंस। और बच्चे और क्या क्या लोग भूख से और दवाओं के लिए मर रहे होंगे। यानी आप ये देखें स्टेज और ये कैफियत हो गई है ग़िज़ा पे कंट्रोल, हवाओं। और क्या फरमाया? बादलों को कहा जाएगा बारिश बरसाओ, बारिश बरसाएगी बादल। आज ये नहीं हो रहा है। इसी तरह बंजर जमीन उसको आबाद कर दिया जाएगा, बांझ गाय उसको बच्चा जनने वाला बना दिया जाएगा, बिल्कुल नाबीना उसको बीना आंखों वाला कर दिया जाएगा। आज जिस तरह से चीजें आगे की तरफ चल रही हैं उसको आप साइंस भी कहें, तरक्की भी कहें, लेकिन इसमें ये सब एक फितना बहरहाल मौजूद है। तो ये इसी तरह एक उस हदीस में ये भी है कि इंसान के टुकड़े कर दिए जाएंगे और लोग उसके दरमियान हरकत करेंगे, और फिर कहा जाएगा इनको मिलाओ, उठा के खड़ा। आज ये नहीं हो रहा। ये जो एनेस्थीसिया आदमी को दे दिया जाता है, फिर क्या होता है? फिर उसके हाथ पर टांग पर कुल्हाड़े चलाकर गोया अलग कर दी जाती है, और उसके बाद फिर जोड़ दिया जाता है, स्टिचिंग हो जाती है, और फिर अच्छा भला आदमी कुछ दिन में ठीक तैयार हो जाता है। ये दिल के ऑपरेशन जो होते हैं, बाईपास, दिल निकाल कर अलग उसकी गोया सफाई की जाती है और बाईपास किया जाता है और फिर रख दिया जाता है। तो और लोग उसके दरमियान बाज़-औक़ात, तो ये सब चीजें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ये गोया दज्जाली फितने के दौर में ये सब कुछ हो रहा होगा। तो इस पहलू से गोया ये एक ऐसा फितना जिसकी हवाई, इसकी कायनाती कुव्वतों पर खासी गिरफ्त हो गई होगी, वो गोया दज्जाली फितना। और दज्जाली फितने का उसका ये जो आगे है कि जो इताअत करेंगे उनकी ज़मीनों में दज्जाल के कहने पर बादलों से बारिश होगी और ज़मीन खूब ज़रख़ेज़ हो जाएगी, उनके मवेशी खूब फरबा होंगे और खूब दूध देंगे, और जो लोग अदम इताअत करेंगे उन्हें तहत से दो चार होना पड़ेगा, उनके मवेशी भी हलाक हो जाएंगे। तो इस पहलू से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो मैंने फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, चंद मिनट हुए हैं और चंद मिनट में खुलासा ही बयान करने की कोशिश की है। और ये वो चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ें हमारे मुशाहिदे में हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई है कि ये सब चीज़ें इस शहरा पर जो उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है, इसमें ये सारे गढ़े और खाइयाँ और कांटे और झाड़ियाँ ये सब नजर आ रही हैं, होशियार रहो। लेकिन क्या ये सूरत हाल ऐसी चलती रहेगी? फितनों में ही क़यामत बर्पा हो जाएगी? नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बात भी फरमाई, और आखिर में मैं उन्हीं चंद चीज़ों का तस्करा जरूर करूँगा
کہ آپ सल्लल्लाहु ने एक तो एक मशहूर हदीस है 5 अदवार वाली हदीस, और आप तारीख देखें उसी तरह चली है तारीख। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा दौर है, दौर नबूवत, कुछ अरसे रहेगा, खत्म हो जाएगा। ये भी साहब उम्मत मुस्लिमा से मुताल्लिक है। नबूवत खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगी? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर खिलाफत अला मिनहाजी नबुव्वा होगी, नबूवत के तरीके पे खिलाफत, वो भी कुछ अरसे रहेगी और वो भी खत्म हो जाएगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर बादशाहतें होंगी, यानी खिलाफत फिर बादशाहतें आ गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी चलेंगी, बिलाखिर वो भी खत्म हो जाएंगी, बादशाहतें खत्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जबर का एक दौर होगा, सख्तियां होंगी, डिक्टेटरशिप होगी। और आप अपनी तारीख का सारा जायजा लें, नबुव्वत के बाद खिलाफत, खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा, और एक चीज नेमत है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज 1450 साल गुजर गए हैं, और मैं आपसे पूछूं मुसलमान हुक्मरान कितने गुजरे हैं? आप कहेंगे बेहिसाब, हजारों, लाख भी हो सकते हैं, 1500 साल में। लेकिन मैं आपसे पूछूं खुलफाए राशिदीन कितने हैं? तो आपका जवाब होगा 4 या 5। ये 400 क्यों नहीं है? ये 4000 क्यों नहीं है? ये 40 भी नहीं है, 1 दर्जन भी नहीं है, 4 या 5, ये क्या चीज है? और अगर मैं पूछूं ये क्या माजरा, ये इतने 1500 मुसलमान हुक्मरान गुजरे, इनको ये क्या मुसलमान ने? आप कहेंगे मुसलमान थे, खलीफा नहीं थे। गोया हुकूमती मेयार जो इस्लाम ने दिया उससे जरा हट गए। ये जो आज खाने काबा कहाँ है, रोज़े रसूल सल्लम कहाँ है? बल्कि आज भी एक साहब ने वहां से मुझे पैगाम दिया कि मैं मदीना में हूँ, रोज़े रसूल सल्लम पर हाजिरी दे रहा हूँ और आपका भी सलाम कह रहा हूँ, लेकिन उस मुल्क के मैं अगर कहूँ वहां खिलाफत है, तो आप कहेंगे नहीं जी नहीं, जबर है, बादशाह। किस कदर पैमाने हमारे सुथरे हैं, किस कदर आइडियल क्लियर है। सदियों का गर्दो गुबार कोई भाम नहीं पैदा कर सका, कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा कर सका कि नहीं जी 500 खुलफाए राशिदीन हैं, 400 हैं, 40 भी नहीं है, 2 दर्जन, 1 दर्जन, 4 या 5। और 5वां खलीफा राशिद वो सहाबी नहीं है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जो कि ताबई है, लेकिन वो मेयार हुकूमत उस पर ले आए जो कि मिनहाज नबवी था, तो आपने कहा वो खिलाफत है। कैसे शानदार! लेकिन ये क्यों है? ये आज 1500 साल बाद भी जहन इस पे इतने क्लियर क्यों है कि ये है खिलाफत राशिदा? उसका जवाब अभी आता है। तो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा होगी, फिर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया फिर उसके बाद बादशाहतें होंगी, वो तो आपने देख लिया, बादशाहत आ गई, मुल्कियत आ गई। फिर आप सल्लल्लाहु ने फरमाया वो भी गुजरेगी, फिर क्या होगा? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया फिर जबर का दौर होगा, सख्ती का दौर। तुर्की, आपको पता है तुर्की में 50 साल पहले क्या था? मसाजिद पे ताले पड़े हुए थे, अजानों पे पाबंदी थी। एक खातून जो अभी जी रही है, हयात है, स्कार्फ पहनने के बाद वो पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गई, और जब वो मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंची तो उससे कहा हल्फ नहीं पढ़ सकती। पूछा उससे क्यों? कहा ये जो सर पे तुम्हारी चादर है इसको उतार दो। उसने कहा मुझे चादर के साथ मेरे अवाम ने मुंतखब किया है, जमहूरियत इसी का नाम है ना, अवाम ने मुंतखब किया है, तो ये क्या तुम्हारी मंतख है कि ये सर पे चादर होगी तो हल्फ नहीं? कहा गया नहीं, तुर्की जो है सेकुलर मुल्क है, और यहां ये जो शायर इस्लाम है ये नहीं चलेगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपनी चादर उतारो और हल्फ पढ़ो अपनी रुकनियत का, या फिर तुम इस ऐवान से बाहर निकल जाओ। लेकिन वो औरत भी और खवातीन वाकईतन, ये मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं, उस खातून ने कहा तुम्हारा ख्याल है ये जो अल्लाह का शायर और इस्लाम का शायर और हुजूर सल्लल्लाहु की हिदायत, तुम्हारा ख्याल है कि ये मेरे नजदीक कम कीमत है और तुम्हारी असम्बली की मेंबरी ज्यादा कीमत है? ठोकर मारती हूं मैं असम्बली की मेंबरी को। उसने उस असम्बली की मेंबरी छोड़ी और बाहर निकल गई। वो अलग बात है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दिन गर्दिश करते हुए आज इस मकाम पर आ गए। वही खातून मलेशिया में तुर्की की सफीर है, और उस खातून की बेटी हिजाब के साथ तैयब अर्दगान तुर्क के सदर की तर्जुमान है। ये मैं अगले जमाने की कहानी नहीं सुना रहा, ये मैं अभी जो हमारी सामने आंखों के हुआ है, तो इस पहलू से। लेकिन आज तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जबर का दौर होगा,
और ये सारी उम्मत मुस्लिमा एक जबर, सख्ती, डिक्टेटरशिप। लेकिन आप सच में फरमाया ये जबर का दौर भी खत्म हो जाएगा। तुर्की में खत्म हुआ, अफगानिस्तान में खत्म हुआ, फलस्तीनी निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, कश्मीरी, हिंदुस्तान के मुसलमान, हर जगह जबर के खिलाफ एक जिद्दोजहद और कोशिश हो रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जबर का दौर भी बिलाखिर खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात फरमाई कि ये जो खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा क्यों हमारे जहनों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबर का दौर जब खत्म होगा तो फिर से खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा कायम होगी, नबुव्वत के तरीके की खिलाफत, जिसको अल्लामा इकबाल ने जरा पहले देख लिया था और कहा था आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवे खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमे तौहीद से, और किताबे मिल्लते बैजा की फिर शीराजा बंदी है, ये शाखे हाशमी करने को है फिर बरगो बर पैदा। और एक और हदीस, वो भी अजीब व गरीब हदीस है। ये हदीस जो है ये हमारे मशहूर आलिम दीन हैं, उन्होंने अपनी किताब तफसीर में कोट की है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, ये उनकी तफसीर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत की उम्र में अल्लाह ताला आधे दिन का इजाफा कर देगा। मैंने जब ये पढ़ा तो मेरी तो कुछ समझ में ना आया, और आगे पढ़ा तो उसमें था कि असलन इस उम्मत की उम्र 1 दिन है और आधे दिन का इजाफा करेगा तो 1.5 दिन हो जाएगा, तो भी कुछ समझ में ना आया। लेकिन जब मजीद आगे पढ़ा तो था कि अल्लाह ताला के नजदीक तुम्हारे 1000 बरस 1 दिन है। ये सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में है कि तुम्हारा 1000 बरस अल्लाह का 1 दिन है और 1500 बरस अल्लाह का 1.5 दिन हो गया। तो मुझे ख्याल आया, आजकल मसाजिद में डिजिटल घड़ियां चल रही हैं, तो आज 15-16 रबीउस्सानी है, लेकिन सन कौन सी चल रही है? 1444। 1.5 दिन होने में कितना वक्त रह गया है? सिर्फ 56 साल। ये तो बिल्कुल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर वक्त में वाकयात इस तरह रूनुमा होंगे जैसे तस्बीह को तोड़ दिया जाए, टप टप जैसे दाने गिरते हैं, इस तरह वाकयात, और वो रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। तो एक ऐसे मौके पर हालात में हम हैं। ऐसे में राह निजात क्या है? वो जो मैंने आयत तिलावत की, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम। अहले ईमान अल्लाह और उसके रसूल, उसके पैगाम को, उनकी दावत को, उनकी हिदायत को कबूल कर लो। ये वो चीज है जो तुम्हें जिंदगी देगी। आज कहा है ना किसी ने कि बुझे इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, इसमें जान कैसे पड़ेगी? इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम। कुरान और सुन्नत, इसको गोया थाम लिया जाए, फिर इबादत जो अल्लाह ताला ने लाजमी की हैं उसको दांतों से पकड़ा जाए, फिर आखिरत, ये बड़ी अहम चीज है। कल्ला बल तुहिब्बून लाजिला व तज़रून आखिरा। ये दुनिया जिस कदर चकाचौंध हो गई है, पुरसहूलत हो गई है, पुरऐश हो गई है, नजर को खीरा करने वाली है, आखिरत तो नजर ही नहीं आती, उसकी तो कोई अहमियत नहीं है। तो इस पहलू से आखिरत सर झुका के आदमी कभी, जिसको मराकबा भी कहते हैं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, आखिरत की याद दहानी, आखिरत की ताजरी। और ये कोई कानून कुछ बिगाड़ को नहीं रोक सकता है ना। दुनिया में सब जगह कानून, अमेरिका में है ना, हर मिनट पे 25 औरतों की इज्जत लुटती है। क्या कर रहा है कानून? आखिरत है जो इंसानों को लगाम देती है और इंसानों को रोकती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फितने दज्जाल से बचने के लिए सूरह कहफ उसका तिलावत की जाए। कहीं है शुरू की 10 आयात, कहीं है आखिरी 10 आयात। और गुजरे हैं हमारे बुजुर्ग मौलाना मन्नाजिर एहसन गीलानी साहब, उन्होंने सूरह कहफ और दज्जाली फितनों को जोड़कर गोया उसकी तफसीर की है, और मेरा ख्याल है कमाल किया है उन्होंने। 70-80 साल पहले लिखा है, लेकिन जहां निगाह उनकी पहुंची है, इन्होंने आज के दौर को इस तरह बयान किया है। तज़कीर भी सूरतुल कहफ इस उन्वान से छोटी सी किताब है, लेकिन
مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کو دارال ارشاد سے چھپایا ہے اور اس کے پیچھے نیچے اپنا ابتدائیہ بھی لکھ دیا ہے، لیکن مناظر احسن گیلانی صاحب نے سورہ کہف اور دجالی فتنوں کو جوڑ کر جس طرح نکات اٹھائے ہیں تو آدمی اس کو تلاش کرے کے پڑھے۔ اسی طرح مشکات کے جو باب الفتن ہیں ان کا تاکہ آگاہی رہے کیا خرابی ہیں، کیا فتنے ہیں، کیا بیماریاں ہیں۔ اور پھر آخری چیز دعا، یہ جو وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، تو یہ جو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اپنی سی کوشش یہ کی جائے، پھر دعا مانگی جائے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا جائے کہ ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے، فتنہ دجال سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اللہ ہی ہے جس نے یہ دعا سکھائی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا۔ حق کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ حق ہو کے نظر آئے، ہاں ضرورت ہے۔ ابو جہل کو حق نظر نہیں آیا، ابو لہب کو حق نظر نہیں آیا، سلمان فارس کے رضی اللہ عنہ ان کو نظر آ گیا، بلال حبشہ کے رضی اللہ عنہ ان کو نظر آ گیا، اپنے گھر میں ابو جہل ابو لہب اس کو، تو حق یہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہم باطل کو ہمیں باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ بس میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کل کے فتنوں سے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح نشاندہی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے آگاہی بھی نصیب فرمائے اور ان سے بچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے اور جنت کے راستے پر چلائے، اور اس سنہرے دور کا اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کا آیا قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔